magnetic materials, different magnetic materials, they have different characteristics. Okay, that is because different materials, they behave differently in the magnetic field. Now question comes that why do they do this? It is because of their magnetic behavior. Okay, and because they also possess some magnetic characteristic. Okay, they also possess some magnetism. Now the question comes that how do they possess magnetism? What is the reason? Why do they possess magnetism? So the reason behind they possess magnetism is that because there are fundamental units which are called atoms, and what atoms do, actually there are electrons revolving in an atom, and when electrons are revolving in an atom, then these electrons, they act as a current loop. As you can see here that there is an electron which is revolving around a nucleus and it acts as a current loop. Okay, so if electron is revolving clockwise, current loop would be acting anti-clockwise. Okay, so this must be clear to you. Now what happens that any atom, it actually possesses magnetic moment. Okay, and now we are trying to derive an expression for the magnetic moment of an atom. Now how can we derive that? So you know that every atom, it possesses some electrons which are revolving. Okay, so what we are going to do, we are going to actually represent a single electron as a current loop, and this current loop will possess a magnetic dipole, magnetic moment or magnetic dipole moment. So magnetic dipole moment is given by I into A, current into area. Now the question occurs that this current, how will we determine this current? Do remember that current is given by rate of flow of charges. Okay, I equals to Q by T. Now as far as charges are concerned, there is electron, so charge on electron is small e. Now let us divide this by the time. And what is the time? Time is the time period. Okay, time taken by the electron to complete one revolution. So it is capital T. Now let us talk about capital T. What is capital T? Capital T is the time period, and that can be written as T equals to 2 pi by omega. T equals to 2 pi by omega. So time period is given by 2 pi by omega. Now what you can do, you can substitute it here. So M is equals to I. What is I? It is E upon capital T into area. Now what is T? It is 2 pi by omega. So you can substitute its value 2 pi by omega into area is pi r square, where r is the radius of the orbit. Okay, r is the radius of the orbit, right? Now this pi and pi is cancelled, so magnetic dipole moment capital M is 1 by 2 e omega r square. This is the expression for magnetic dipole moment of a revolving electron. Okay, ये जो है magnetic dipole moment of a revolving electron के लिए एक्सप्रेशन है. अच्छा, इसके बाद में इसमें थोड़ा सा और एडिशन, आई थिंक यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर होगा. एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से. ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या है, एक्सप्रेशन. इसमें थोड़ा सा एक दो चीज़ें और ऐड करना है, क्योंकि हम एक्चुअली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट भी निकालना चाहते हैं. ठीक है, तो इसमें हम एक दो चीज़ें और ऐड कर देंगे, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. तो आप देखिए, आपको पता है कि बोहर एटॉमिक थ्योरी जो होती है वो क्या कहती है. अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स दे कैन रिवॉल्व इन ईच एंड एवरी ऑर्बिट, बट in fact they can revolve in certain orbits only. And according to Bohr's atomic theory, you know that angular momentum of electron should be equal to integral multiple of h upon 2 pi. Do you know this? Okay, in chemistry you must have studied it, that the angular momentum of electron should be equal to integral multiple of h upon 2 pi.
Now if we substitute value of v, we know this that relation between linear velocity and angular velocity is v equals to omega r. Okay, so if it is v equals to omega r, we can substitute its value here. It gives you omega r square, and that is equals to nh upon 2 pi. Okay, so this value of omega r square is nh upon 2 pi m. From here, omega r square is nh upon 2 pi m, and this particular value we can substitute somewhere here, okay, in this expression. So once you do that, what you will be getting is m is equal to, now you see nh upon 2 pi m in place of omega r square, so it gives you 1 by 2 e into nh upon 2 pi m. Now we can solve it further. M is equals to n times eh upon 4 pi m, n times eh upon 4 pi m. Okay, n times eh upon 4 pi m, and this eh upon 4 pi m is the basic unit. Okay, n is a principal, n is called principal quantum number. Okay, for different orbits it is there, but as far as eh upon 4 pi m is concerned, this eh upon 4 pi m actually represents the unit. This is the unit of the angular, this is the unit for the orbital magnetic dipole moment of the electron. So eh upon 4 pi m is actually called Bohr magneton. Eh upon 4 pi m is called Bohr magneton, and it is denoted by mu b. It is denoted by mu b. So mu b is Bohr magneton. Okay, and this is the unit of magnetic dipole moment. Okay, now if you substitute these values, E, H, 4 pi m, everything is actually constant. Okay, अब आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर ये जो है mu b equals to eh upon 4 pi m, this is the magnetic, this is the unit, this is called Bohr magneton. And if you substitute these values, okay, ये सारी values constant है बच्चों, E, H, 4 pi m, ये सब constant है. अगर आप इनकी values रख देंगे तो value रखने पर आपको value मिलेगी इसकी final mu b की 9.27. मुझे भी याद नहीं है, ये तो मैं देख के बता रहा हूँ. 9.27 into 10 to the power minus 24. 9.27 into 10 to the power minus 24. और बताइए यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर. यूनिट वुड बी एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये जो है ये आपका हो गया बोहर मैग्नेटॉन. दिस इज हाउ वी डिफाइन बोहर मैग्नेटॉन. अच्छा, ये जो डिस्कशन था इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि भाई जो मटेरियल्स हैं उनका क्या होता है, उनमें मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाता है, और वो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब इसकी जो इंटरनल मैग्नेटिज्म है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है. और वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है उसके बेसिस पर अलग अलग तरह के क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं, है ना. तो ये डिस्कशन का जो कंक्लूजन है, कंक्लूडिंग पॉइंट है, वो ये है कि अलग अलग मटेरियल्स जो होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स जो हैं उनका इंटरनल मैग्नेटिज्म जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है. ठीक है, और उसके कारण अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग तरह से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड. आइए अब हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म. सम इंपॉर्टेंट टर्म्स. ओके, so these are some very important terms, some important terms used in magnetism. Okay, so now we are going to discuss some extremely important terms which are frequently used during this magnetism chapter. Okay, so let's talk about these important terms. The first term is magnetic permeability. Okay, the first term is magnetic permeability. So magnetic permeability. Okay, permeability.
Now what is it? Permeability is actually the ability of a medium to actually allow magnetic field lines to pass through it. Okay, it is the ability of a medium to allow magnetic field lines to pass through it. Understood? ये जो है इसको magnetic permeability कहते हैं. ठीक है? So how do we define it? So it is defined as the ratio of number of magnetic field lines per unit area. Number of magnetic field lines per unit area in that medium. Okay, it is the property of the medium. So magnetic field lines per unit area in that medium divided by number of magnetic field lines in vacuum or air. Okay, and because we are comparing it, so that's why it is called relative magnetic permeability or magnetic permeability of the medium. So it is as compared to vacuum. Okay, so how do you define it? Mu r equals to B upon B naught. Do remember when we say B upon B naught? Okay, this is magnetic. Now these are number of magnetic field lines per unit area of the of that medium or in that medium divided by magnetic field lines per unit area of vacuum. Okay, so this is how it is defined, right? Now this is also called relative magnetic permeability. Now if I ask you what is the unit of this, इसकी यूनिट क्या होगी? अच्छा, डायमेंशंस क्या होंगे? तो डायमेंशंस तो कुछ नहीं हो सकते, डायमेंशन लेस है ये, और यूनिट भी नहीं हो सकती क्योंकि B अपॉन B नॉट है ना? कि यूनिट हो सकती है, यूनिट माइट बी पॉसिबल, यूनिट हो सकती है, लेकिन जो डायमेंशंस है इसके डायमेंशंस नहीं होते हैं. इट हैज़ नो डायमेंशंस क्योंकि ऊपर भी B है और नीचे भी B नॉट है, मतलब B ही है, तो दोनों के डायमेंशंस जो है सेम होते हैं, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है. ठीक है, इट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी. ठीक, तो ये जो है इसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं. बेसिकली क्या होता है कि वैक्यूम में मान लीजिए एक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अवेलेबल हैं स्पेस में, एक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप किसी मीडियम में जाते हैं तो मीडियम में जाने पर क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि मीडियम उन्हीं को अलाउ करेगा, हो सकता है कि वो कम को अलाउ करे, हो सकता है वो ज़्यादा को भी अलाउ कर दे, है ना? इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम. ओके, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ नीड टू डिफाइन अ टर्म एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, है ना? क्योंकि अलग अलग जो हैं उनका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होता है मीडियम का अलग अलग होता है. ठीक है, इसको मैं हमेशा एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे अपने मोहल्ले में आप जब क्रिकेट खेलने लगते हैं बाहर रोड पे, तो आप किसी के घर के सामने खेल रहे हो अगर, तो कुछ अंकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बोलते जा रहे नहीं नहीं यहाँ क्रिकेट नहीं खेलना है, ऐसा हो जाता है, ग्लास हमारे विंडो ग्लास जो है टूट जाएंगे, ऐसा वैसा, है ना? लेकिन कुछ होते हैं, वैसे तो होते ही नहीं है आजकल ऐसे, लेकिन कुछ होता है अरे यहाँ क्यों खेल रहे हो, जाओ हमारे आंगन में खेल लो, वहाँ पे खेल लो, है ना? ऐसा तो होता नहीं है ना? आजकल तो ऐसी प्रजाति लुप्त हो चुकी है, लेकिन ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है. सो बेसिकली मीडियम कितनों को अलाउ कर रहा है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ कर रहा है अपने से पास होने देना, दैट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. अगली डेफिनेशन जो हमें देखना है वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. क्या देखना है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. नाम को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्या है, अभी ये ऐसी 4-5 और डेफिनेशंस देखना है. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा मालूम है? अंत में आपको ऐसा लगेगा कि सब एक जैसा ही है, कोई अंतर ही नहीं. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. आई बात समझ में? इसको हमें समझना है. तो ये जो होता है, इसको जो हमने पहले यूज कर लिया पिछले वाले में, वो है कैपिटल बी. इसको अब हम डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. अच्छा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. ओके, इससे भी जाना जाता है. अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, अगर मैं कभी भी कोई भी टर्म पूछूंगा, मुझे पता है 99.99% टाइम रिस्पॉन्स जो मिलता है बच्चों को कैसे मिलता है, सर मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो याद रखिए सबका अलग अलग नाम है ना? ये है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. ठीक,
अब कैसे डिफाइन करते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आप समझिएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर लगने वाले फोर्स के लिए ये फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इस फोर्स के टर्म्स में हम कैपिटल बी को डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम का, और वो यूनिट वेलोसिटी से 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब थीटा जो है 90 डिग्री है। तो देखो साइन 91 हो गया, Q1 है, V1 है, ठीक है कि नहीं। तो अगर ऐसा है, ऐसा एक केस ले लें जब एक यूनिट पॉजिटिव 1 कूलम का जो चार्ज है वह क्या कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा, उस पर जो फोर्स लगेगा है ना, ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स जो है वह कैपिटल बी के इक्वल होगा। यानी कि कैपिटल बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द फोर्स, और इट इज इक्वल टू द फोर्स numerically it is equal to the force which is acting on a charged particle which has charge 1 coulomb and moving with the velocity 1 meter per second in a magnetic field perpendicular to the direction of the magnetic field। जब वो perpendicular to the direction of magnetic field जाएगा तो जो फोर्स लग रहा है वह न्यूमेरिकली इक्वल जो होगा वो किसके होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल होगा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो क्विकली नोट डाउन कर लें। ये जो कैपिटल बी है इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसे टेस्ला भी कहा जाता है। ओके, इधर वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ओके, इधर वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ये इसकी क्या होती है, यूनिट है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। ये ऐसा यूनिट है हाँ, और सीजीएस में जो होता है वो होता है गॉस। सीजीएस में इसकी यूनिट होती है गॉस, और 1 गॉस जो होता है, 1 गॉस जो होता है वो होता है 10 to the power -4 टेस्ला। 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10 to the power -4 टेस्ला, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अब हम अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, और वो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या है, मैग्नेटाइजिंग। देखिए सब एक जैसे ही लगेगा, थोड़े देर बाद ऐसा लगेगा ये वही तो था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इनको बार बार पढ़िएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। और नाम में छुपा हुआ है इसका, है ना, इस देखिए नाम में इसकी प्रॉपर्टी छुपी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि नाम तो बहुत अच्छे से याद कर लें। मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अच्छा एक बात बताओ कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मतलब कि मैग्नेटाइज करने की क्षमता, सिंपल सी बात करें तो ये किसकी क्षमता होगी, ये एबिलिटी होगी उस फील्ड की। दिस इज द एबिलिटी ऑफ द फील्ड। फील्ड ये डिसाइड करेगा, है ना, समझना ध्यान से, नाम नहीं छुपा हुआ है। जैसे हम बोलते कि ही इज अ ग्रेट ऑरेटर, ग्रेट ऑरेटर है तो भाई ये उसकी प्रॉपर्टी है, ऑडियंस गेट कनेक्टेड विद हिम वेरी इजीली, क्यों, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है। सिमिलरली व्हेन वी से मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, सो इट इज शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड, ये फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको, और आपको पता है कि कोई सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड में क्या होता है कि अगर कोई मटेरियल रखा हुआ है और उस मटेरियल में अगर आपने क्या करा, उसका मतलब कोर मटेरियल है, और आपने क्या किया, करंट फ्लो किया, तो सोलेनॉइड जो होती है वो मैग्नेट की तरह क्या करने लगती है, बिहेव करने लगती है।
इट स्टार्ट एक्टिंग एज अ मैग्नेट। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड की म्यू एन आई होती है, प्रोवाइडेड कि म्यू जो है परमिएबिलिटी है उस मीडियम की या उस मटेरियल की जो कि आपने एज अ कोर मटेरियल सोलेनॉइड में लिया है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपने लिख दिया B इक्वल्स टू म्यू एन आई। अब ये एन आई जो है, एन आई, दिस एन आई इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एन आई, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड आई इज द करंट। ठीक है, तो ये जो एन आई है इसे कहा जाता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और इसको डिनोट किया जाता है X से। याद रखिएगा, इसमें जो एन आई है यह है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, H इक्वल्स टू एन आई। क्योंकि देखिए ये बेसिकली बता रहा है कि उस फील्ड में कितनी क्षमता है, वो फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। और फील्ड किस पे डिपेंड करेगी, लूप्स पर, कितना लूप है, कितने करंट लूप्स हैं उस पर डिपेंड करेगी। और देखो ये करंट लूप ही तो बता रहा है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कितने टर्न्स हैं यूनिट लेंथ में, और मल्टीप्लाइड बाय I, मतलब कि सीधी सी बात है कि कितने क्या होंगे करंट लूप होंगे, वो बता रहा है H। यानी कि ये करंट लूप्स जो हैं वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो उसकी जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होगी वो इससे दी गई है X से। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल्स टू म्यू H, B इज इक्वल्स टू म्यू H। अब बात आती है H इक्वल्स टू एन आई, जैसा हमने देख लिया था, है ना। अब मान लीजिए कि अगर सोलेनॉइड में अंदर जो है वो एयर है ना, मटेरियल नहीं है, एयर है, तो ये हो जाएगा B नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट H, क्योंकि अब आपकी बात एयर है यार, तो B नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट H हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, B नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट H। तो याद रखिए कि ये म्यू नॉट जो है ये क्या है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, है ना। और जो H है वो तो क्या है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है या मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। ठीक है, बार बार इनको पढ़ना पड़ेगा तब आपको फील आएगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक, आगे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, एक क्विक रिव्यू ले लें, एक क्विक नोट बना लें, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद अगली जो डेफिनेशन है वह है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, देखो नाम में ही काम छुपा हुआ है ना। अल्टीमेटली वो बोलते हैं कि नाम में क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि नाम में ही है। आप अगर नाम को थोड़ा सा समझ जाएं और उसको थोड़ा सा क्या कर लें, डी कोड कर लें, जिसको बोलते हैं दा विंसी कोड, है ना, डी कोड अगर कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ है मैग्नेटाइजिंग, सॉरी ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना। आप समझिएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अच्छा एक बात बताओ, एक सेकंड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अच्छा अब एक बात बताओ कि भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी किसकी, मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी। अरे भैया एक बात बताओ, मैग्नेटाइजेशन की अगर इंटेंसिटी है तो ये किसकी क्षमता है। अगर मैं मोटिवेट हो जाता हूँ किसी से तो ये मेरी क्षमता भी तो है। यहाँ कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना मैग्नेटाइज्ड हो गया कोई मटेरियल, वो कौन बताएगा, वो मटेरियल खुद की प्रॉपर्टी है मटेरियल की। जैसे समझो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने साल भर आपको पढ़ाया और अब आप एग्जाम देने गए। अब किसी बच्चे को 100 में से 100 आ गए फिजिक्स में, किसी को 80 आए, किसी को 90 आए, किसी को 95 आए। तो भाई मैंने तो सबको एक जैसी फील्ड दी थी, मतलब एक जैसी सीख दी थी, लेकिन अलग अलग जो मटेरियल है वो अलग अलग मैग्नेटाइज हुए। क्यों, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है। मेरा अच्छा मैंने जो ये टॉपिक पढ़ाया, अगर मैं अभी आधे घंटे बाद में आप लोगों से पूछूं तो हो सकता है 5 में से 3 को आ जाएगा, 2 को कम आएगा, 1 को आएगा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है यह एक्चुअली मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मीडियम इन्वॉल्व है, इंटेंसिटी है, कितना होगा, इंटेंस है कितना, लेकिन
किसका, ये मीडियम की बात हो रही है यहाँ। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसे डिफाइन होती है, इसको डिफाइन किया जाता है कैपिटल M बाय कैपिटल V से। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे डिफाइन करते हैं इसको, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट उसका जनरेट हुआ है। देखो अपन कितने अंदर तक पहुंच गए, अब मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ है, तब जबकि मटेरियल को हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये एक्चुअली बात हो रही है यहाँ पर, है ना। अच्छा मान लेते हैं कि आपके पास में क्या है, एक एक रॉड है, उसका एक रेक्टेंगुलर बार है ना। तो इस तरह से एक बार है मान लीजिए, है ना, और रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो वो तो आप खैर मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक रेक्टेंगुलर बार है इस तरह से, ठीक है। और इस रेक्टेंगुलर बार में क्या है, इस रेक्टेंगुलर बार में यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है इसका, और लेंथ जो है वो मान लेते हैं 2L दी, है ना। L भी दे सकते हैं, 2L दे दी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वो मैग्नेटिक लेंथ जो इस तरह से ली जाती है, इसलिए ऐसा किया, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट ये मटेरियल की बात हो रही है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है उसको, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और मैग्नेटाइज्ड हो गया है, उसकी बात हो रही है ना, ये उस स्पेसिमेन की बात हो रही है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइन होता है भैया, मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन होता है m × 2L। m क्या होता है, स्मॉल m इज कॉल्ड पोल, इट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इसको, पोल स्ट्रेंथ, मतलब किसी पोल की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ है, उसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। और × 2L रहता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होगा इसका, एरिया मल्टीप्लाइड बाय 2L। अब देखो 2L से 2L गया, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। क्या आ रहा है, पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो m/a से भी इसको डिनोट किया जाता है। अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होगी। अच्छा बताइए, इतना सभी को समझ में आ गया है एवरीवन, जल्दी से झलकाइए, सभी को समझ में आ गया इतना, सभी को मैसेज, फटाफट मैसेज कर दो, आगे बात करते हैं फिर। चलिए इतना समझ में आ गया है, तो अब आगे जो बात है वो आसान हो गई कि भाई अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इसकी यूनिट निकालना है, आइए इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम की यूनिट निकाल लेते हैं। तो देखिए I = मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या है, वो है आपको पता है I × A होता है, तो वो है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या है यूनिट, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक। और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम है मीटर क्यूब। तो ये क्यूब से एक गया, क्या बचा बच्चों, वो बच गया, इसकी यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर। क्या हो गई, एम्पियर पर मीटर। सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन is ampere per meter. I hope you understood this. Clear everyone, is it clear, am I clear? Okay, so if this is clear to you all, now we are moving to the next definition, and that is magnetic susceptibility. Okay, magnetic susceptibility. Now try to understand this definition, magnetic susceptibility. Okay, so what do you mean by magnetic susceptibility? You must have studied susceptibility in chemistry also, if I am not wrong. Okay, but this is magnetic susceptibility. So try to understand magnetic, okay, susceptibility. Okay, susceptibility, susceptibility,
PPIBILITY, magnetic susceptibility. And magnetic susceptibility is denoted by chi m. Okay, because magnetic, that's why m. Okay, because it is magnetic, that's why m is written. And chi is what susceptibility is. Okay, so it is called magnetic susceptibility. Chi m is called magnetic susceptibility. So let's talk about that. Now do remember, magnetic susceptibility is defined as the ratio of I by H. Magnetic susceptibility is defined as the ratio of I by H. I is to H. Now what is it? What is I? I is intensity of magnetization. And what is H? H is magnetizing force. Intensity of magnetization and magnetizing force, these are two important terms, and their ratio is given by magnetic susceptibility. Now what does it mean? It means that how much ease a material can get magnetized, how much easily a material can get magnetized. This is what is called magnetic susceptibility. Okay, so if magnetic susceptibility is higher, it means that you can magnetize a material easily. But if it is lower, then it means that it is difficult to magnetize a material. Okay, so this is what is the meaning of magnetic susceptibility. It shows the ease with which a material it gets magnetized. I hope these all terms are clear to you. Next, we will be discussing one relation between magnetic permeability and magnetic susceptibility.